Antam Shukrana Guruji for blessing us with this beautiful seva of reading as well as listening to the Shiv Puran. Right from Guruji's mouth came the words that we must read it a little every time, as it not only expiates our sins, it also opens the doors of salvation. So to help ourselves and to expiate our sins, it's very important that we read or listen to this. If at all, you're going through some troublesome time, or if at all, you are struggling in your life, this will really help you, not only calming you down, but helping you, attain some sort of peace and getting closer to God. With that, we begin with the synopsis for today. Last week, we read chapter 38 and 39 of Rudra Samhita, section 5. In this, we read that there was a fierce battle between the gods and the demons, and in the battle, both the demons as well as gods, they fought in a righteous manner. Now, when Shankachura and Kartikeya were fighting, Shankachura hurled the spear of Brahma at Kartikeya, and Kartikeya fell on the ground. Now, Kali took Kartikeya in her lap and went back to Shiva, and Shiva enlivened Kartikeya and gave him immense strength. In the meantime, Virabhadra was fighting with Shankachura in a very powerful battle, and at the request of Kartikeya, Kali went back to the battlefield and started to devour the Danavas. Now, she roared like a lion, which made the Danavas faint, and seeing these Danavas frightened, Shankachura hastened to the battlefield and then started a fierce battle between Kali and Shankachura. Now, Shankachura started hurling powerful missiles at Kali, but Kali broke the missiles into millions of pieces and she was not affected by it. Now, Shankachura also tried several ways of Maya, of deluding Kali. Just then, Kali took out the Pashupata arrow and sanctified it with mantra. Just then, there was a celestial voice that guided Kali not to use this arrow on Shankachura, because Shankachura would not be killed by this arrow, and guided her to think of some other way. In the meantime, Shankachura vanished, and then Kali grabbed the charioteer of Shankachura and killed him. Then Shankachura reappeared, and then Kali grabbed Shankachura and seized him, and then she hurled him and then twisted him and then beat him up. So Shankachura bowed down in front of Kali, and after that Kali continued to drink the milk, the blood of demons, and she continued to devour many demons. Just then a celestial voice told Kali that there were about 100,000 demons which she had to devour, and she did as she was guided. Then she went back to Lord Shiva and told him about the events of the war, and since she was not destined to kill Shankachura, she was a little sad. So Lord Shiva consoled her, and then he got ready for a battle along with his Ganas. He assumed a heroic form, and he was surrounded by his warriors like Virabhadra and Kshetrapala. Now, when he entered the battlefield, Shankachura got down from his chariot, bowed down in front of the Lord with devotion, and then, after paying his respect to Lord Shiva, he got back on his chariot, getting ready for a fight with Lord Shiva. When the fight between the two started, it was such a fierce battle that the heaven and earth shook, and this battle carried out for about 100 years. Then Shiva took his trident and pierced Shankachura's chest with his trident, and then a valorous huge being came out of his chest, and then Shiva severed the head of that being, and that head fell on the ground. In the meantime, Kali and Virabhadra and Nandin and Bhairavas and Ganas, all of them actually destroyed the major portion of Shankachura's army. Now, what happened to Shankachura, we'll read further in this chapter, chapter 40, that Shankachura is slain. Today we have Shruti Aunty who will read this chapter in English. We also have Hindi reading. This will be one chapter, which is a combination of chapter 36 to 40 in
English, and this Hindi reading would be done by Rachna Aunty. Jai Guruji, enjoy the readings for today. Jai Guruji, we'll be reading chapter 40 of Rudra Samhita, section 5, Shankachura is slain. Sanat Kumara said, on seeing the important and major portion of his army killed, including heroes as dear to him as his life, the Danava became very furious. He spoke to Shiva, I am here standing ready. Be steady in the battle. What is it to me if these are killed? Fight me standing face to face. O sage, after saying this and resolving resolutely, the king of Danavas stood ready facing Shiva. The Danava hurled divine missiles at him and showered arrows like the cloud pouring rain. He exhibited various kinds of deceptive measures, invisible and inscrutable to all the excellent gods and ganas, and terrifying as well. On seeing that, Shiva sportively discharged Terit, the excessively divine Maheshwara's missiles that destroy all illusions. All the illusions were quelled rapidly by its brilliance. Though they were divine missiles, they became divested of their brilliance. Then in the battle, the powerful Lord Shiva suddenly seized his trident, which could not be withstood even by brilliant persons, in order to slay him. In order to prevent him then, an unembodied celestial voice said, O Shiva, do not hurl the trident now. Please listen to this request. O Shiva, by all means, you are competent to destroy the entire universe in a trice. What doubt then in regard to a single Danava Shankachura? Still, the limit imposed by the Vedas should not be disregarded by you, the Lord. O great God, listen to that. Make it truthful and fruitful. O Lord Shiva, it has been mentioned by Brahma that as long as he wears the armor of Vishnu and as long as his wife maintains the marital fidelity, Shankachura has neither death nor old age. Please make those words truthful. On hearing this celestial voice, Shiva said, so be it. Vishnu came there at the wish of Shiva. Shiva, who is the goal of the good, commanded him. Then, in the guise of an old Brahmin, Vishnu, the foremost of those who yield magic, approached Shankachura and told him. The aged Brahmin said, O Lord of Danavas, give me the alms for which I have come to you. I shall not say openly what I wish to have from you who are favorably disposed to the distressed. I shall tell you when you have promised me first. With face and eyes indicating pleasure, the king replied affirmatively. Then the deceptive Vishnu in the form of Brahmin said, I am the suppliant for your armor. On hearing that, the Lord of Danavas, a well-wisher of the Brahmins and of truthful word, handed over the divine armor, his vital breaths to the Brahmin. Vishnu thus snatched off his armor by means of deception. Then, in the guise of Shankachura, Vishnu approached Tulasi. Lord Vishnu, an expert in yielding magic, went there and deposited his semen in her vaginal passage for the protection of gods. In the meantime, the Lord of Danavas approached Shiva without the armor. He took up his trident that blazed to slay Shankachura. That trident named Vijaya of Shiva, the great Atman, shone illuminating heaven and earth. It was a refulgent as cold midday suns and as fierce as the shooting flame of fire at the time of dissolution. It could neither be prevented nor withstood. It was never ineffective in destroying enemies. It had a fierce halo all around. It was the best of all weapons and missiles. It was unbearable to gods and asuras. It was terrible to all. In order to annihilate the whole cosmos sportively, all brilliance had converged into it. It was 1,000 dhanus in length and 100 hastas in width. It was in the form of individual as well as universal soul. It was eternal and uncreated. That trident whirling round over the head of Shankachura for a while fell on the head of Danavas at the behest of Shiva and reduced him to ashes. O Brahmin, then it rapidly returned to Shiva and having finished its work went away by the aerial path with the speed of the mind. The Dundabhis, who were surrounded in the heaven, Gandharvas and Kinnars sang. The sages and the god
eulogized, and the celestial damsel danced. The continuous shower of flowers fell over Shiva. Vishnu, Brahma, Indra, other gods and sages praised him. Shankachura, the king of Danavas, was released from his curse by the favor of Shiva. He regained his original form. All the conches in the world are formed of the bones of Shankachura. Except for Shiva, the holy water from the conch is sacred for everyone. O great sage, particularly to Vishnu and Lakshmi, the water from the conch is pleasant. To all persons connected with Vishnu, it is so, but not to Shiva. After slaying him thus, Shiva went to Shivaloka, seated on his bull, joyously accompanied by Parvati, Kartikeya, and the Ganas. Vishnu went to Vaikuntha. Krishna became complacent. The gods went to their abodes with great delight. The universe regained normalcy. The whole earth was freed of obstacles. The sky was pure. The whole world became auspicious. Thus I have narrated to you the delightful story of Lord Shiva that removes all miseries, yields wealth, and fulfills cherished desires. It is conducive to prosperity and longevity. It prevents all obstacles. It yields worldly pleasures and salvation. It confers the fruits of all cherished desires. The intelligent man who hears or narrates the story of the moon-crested Lord, or reads or teaches it, shall undoubtedly derive wealth, grains, progeny, happiness, and all desires, and particularly devotion to Shiva. This narrative is unequaled. It destroys all torments. It generates great knowledge. It increases devotion to Shiva. The Brahmin listener attains Brahminical splendor. The Kshatriyas became a conqueror, the Vaishya rich, and the Sudras the most excellent of men. Jai Guruji, I would like to invite Rachna Aunty to continue reading in Hindi. Shukrana Guruji. Jai Guruji, Shukrana Guruji for this beautiful seva. देवताओं और दानवों का युद्ध, शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम, पुनः उसके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना। शिवजी का शंखचूड़ के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो विष्णु को प्रेरित करना। विष्णु द्वारा शंखचूड़ के कवच और तुलसी के शील का अपहरण, फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध, शंख की उत्पत्ति का कथन। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिवजी का वचन कह सुनाया तथा तत्व उन्हें उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानव राज शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर अखिलेश्वर शिवजी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए संलग्न हो गए। फिर वो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणवाद्य बजने लगे, वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुने इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्म पूर्वक जूझने लगीं। स्वयं महेंद्र वृषपर्वा के साथ लड़ने लगे और विपरीजित के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु दंभ के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से काल, गोकर्ण से अग्नि, कालकेय से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, कालंबिक से वरुण, चंचल से वायु, घटपृष्ठ से बुध, रक्ताश से शनैचर, रत्नसार से जयंत, वर्चागणों से वसुगण, दोनों दीप्तिमानों ने से दोनों अश्विनी कुमार, धूम्र से नलकूबर, धुरंधर से धर्म, गणकाक्ष से मंगल, शोभाकर से वैष्णवर, पिपिट से मनमत, गोकामुख, चूर्ण, खड़क, धूम्र, संहल, प्रतापी विश्व और पलाश नामक असुरों से 12 आदित्य धर्म पूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा।
11 महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के महामणि राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्मयुद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया है। मुने, उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थीं और शंभु कालत्सुक के साथ वटवृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूड़ भी रत्नाभरणों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। तदनंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। उसी बीच महाबली वीरभद्र समर भूमि में बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी, इसी समय देवी भद्रकाली ने समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उसके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वे रण के मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उग्रदंडा और कोटवी ने भी मधुपान किया तथा अन्यान्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ किया। उस समय शिवगणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया। तदनंतर काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान उद्दीप्त आग्नेय शस्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णव वास्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलयाग्नि की ज्वाला से समान उद्दीप्त होते हुए नारायण अस्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से ही उसका निवारण कर दिया। तदनंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्यास्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यों उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता तथा दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपावेश से उस पर वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानवराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई और वह उठकर खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मात्र बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाहुयुद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ। उस महायुद्ध में वह तनिक भी भ्रांत नहीं हुआ था, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। इधर कालिका भूख से विहल होकर दानवों का रक्त पान करने लगी। इसी अवसर पर वहां यों आकाशवाणी हुई, ईश्वरी अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं। ये बड़े उद्यत हैं, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी, संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवध्य है, ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और फिर वे शिवजी के निकट चली गईं। वहां उन्होंने पूर्वापर
के क्रम से सारा युद्ध वृतांत कह सुनाया। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, काली का ये कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कंठा जाग उठी है। सनत कुमार जी बोले, मुने, शंभु तो जीवों के कल्याण करता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं। वे काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदनंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्व ज्ञान विशारद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समर भूमि की ओर चले। उस समय वे महावृषभ नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। यूं व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्धस्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए यों आकाशवाणी हुई, शंकर, मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। ईश, यद्यपि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो बात ही क्या है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए। वह देव मर्यादा ये है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः जगदीश्वर शंकर, ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। जब सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिवजी ने इस आकाशवाणी को सुना, तथास्तु कहा, उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु के उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिवजी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े। वे तो मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उससे यूं कहा। वृद्ध ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। दीन वत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूँगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे से मैं बताऊंगा और तब उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान था, ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुंचे। वहां जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप में उसके शील का हरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिवजी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उदीप्त त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्याह्न कालीन करोड़ों सूर्य तथा प्रलयाग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्धर्ष, कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था। वह तेजों का अत्यंत उग्र समूह, संपूर्ण शास्त्रास्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए दुस्सह था। वह एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उद्यत हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी।
जब जीव ब्रह्म स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था, उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिवजी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। विप्र, महेश्वर का यह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में दुंदुबियां बजने लगी, गंधर्व और किन्नर गान करने लगे, देवों तथा मुनियों ने स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिवजी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ भी शिवजी की कृपा से शाप मुक्त हो गए और उसे उसके पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। महामुने श्रीहरि और लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर उमा, स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर सवार हो शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद मग्न हो अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे। मुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया है वह आनंददायक, सर्व दुखारी, लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।